हाय आई एम बैक। जैसे मैंने बताया ट्यूशन पढ़ा रही थी। बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा आसमान है। और कंटिन्यू करते हैं बातचीत। कहाँ लगाऊं इसे? ये तो बिल्कुल मेरे गले में घुस जाएगा। हाउस दिस वर्क्स आई गेस। या सो आई फील रियली ठंडी लग रही है ना। uh, I really enjoy being on YouTube in the sense that I have made some really great friends here, even though they don't know they are, that I consider them my friends. Are you getting me? Like we don't talk regularly or like converse like friends do, मतलब call या जो regular बातचीत होती है ना, तो मैं उनके पास rant करी कि ओए पता नहीं मैंने आज के क्या कर दिया। लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके दिन में क्या बोलते हैं, एनर्जी शुरुआत में बहुत हाई होती है लेकिन दिन जाते जाते वो लो होती जाती है। मेरे साथ उल्टा है दोस्तों। सुबह मेरी जो एनर्जी है ना वो तो रहेगी, बट फिर मेरी धीरे 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 ऊपर हो जाती है। एंड देन रात में आई एम एट दिस फुल प्रोडक्टिव फीलिंग के हिसाब से भी। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग, लाइक आई एम चिल, आई एम काम, but as the day goes my feelings escalate, my emotions escalate, and I'm feeling 5,000 different emotions at the same time. Irrespective of that, uh, what I'm doing right now is मैंने मेरे लॉन्ग डिस्टेंस क्यूटीज वाला स्टेटस पे लगा रखा है। इसका बर्थडे है। I love sending people happy birthday, even though like I'm not doing anything for them, or like my message probably does not even make any difference in their day, but I just love it. Happy birthday, grateful for another day, good morning। ये मेरे दोस्त ने दिन में डाला हुआ है। ये देवदास मूवी का सीन क्या है? 87,600 घंटे तक वो दिया जलाती है। अबे यार, एक तो मुझे इनके नहीं समझ आ रहे, सच में नर्डी नहीं हूं मैं। आई एम नॉट नर्डी इनफ। बट यार नर्ड होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं सब मूवी देखूं। दैट इज अ डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर इट। आई फील लाइक नर्डी मीन्स यू शुड हैव रेड इट, राइट? Like it should be intellectual in some way, related to intellectual, you know, intelligence somehow. I hate that my video is now dull, but at the same time, it is exactly what I'm feeling. So it makes sense. Make it make sense. Have you heard of that? I hope you. ये मैं फालतू बोल रही हूँ क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू बोल रही हूँ? By the way, this is Perks of Being a Wallflower. I remember reading this book and crying my eyes out when I was a teenager. Specific, to be specific, I was 16, 17 years old. And 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 those were some of the hardest years of my life because I was dealing with burnt out, rusted academic weapon thing. I've written a whole thing on this. I don't want to share it on the internet, but at the same time, why not? Maybe someday, maybe. I have shared it on my writing account once, on which account I had what 50 subscribe followers. Yeah. तो दोस्तों इस पूरे चपड़ चपड़ से आपको क्या समझ आया? यही कि मैं अपने दोस्तों को परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ गप मार के, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू टॉक टू देम। अभी मैं अपने दोस्तों को कॉल करने वाली हूँ 5 मिनट के अंदर, बट रैंट करके बहुत अच्छा लगता है याद करके, इट्स लाइक एज माय मैम सेड कि those minutes or that hour or that period feels like it gives you solace, true complete peace.
I do feel that I'm grateful that I have friends I can talk to about anything and everything and still feel safe and loved and admired, you know. It's crazy. It is crazy to reach this phase where you are not affected by their attitude or their weirdness anymore. जैसे मैं एक रील देख रही थी कि टू बी माई फ्रेंड आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद पीपल हु गेट इजीली एम्बेरस्ड एंड आई एम नॉट फ्रेंड कि अगर हम पब्लिक में हैं दोस्तों तो मैं पूरी वो कर दूंगी, तो मैं एम्बेरस होने पे मजबूर कर दूंगी, लेकिन मेरे दोस्त को अब आदत हो गई है ऐसी, समझ जाते हैं कि मैं कुछ तो करूंगी तूफानी, और अब तो वो थक गए हैं परेशान हो होके भी, but it doesn't work that way, you know. ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम दुबई, क्या क्या करते हैं यार अंट सी चीजें हमारे कॉलेज वाले. academic workshops, certification program. A valid passport is required to register. Interesting way to say you're not invited. Recently I'm thinking ki, because I think I talk better with words, in the sense कि मैं कविता के फॉर्म में अपने इमोशंस को पोर कर सकती हूँ, एंड देन थ्रू दैट पोएम आई कैन टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स इमोशंस. जैसे मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही थी, एंड जब भी मैं कुछ बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ है रिसेंटली कि मैं कह ही नहीं पाती हूँ मैं जो कह रही होती हूँ, यू नो, आई गेटिंग मी, कि मतलब मैं साफ साफ शब्दों में नहीं कह सकती मैं क्या फील कर रही हूँ. इट इज रियली हार्ड फॉर मी, आई फाइंड इट रियली हार्ड टू से सिंपली. सपोज मुझे कहना है कि आई वॉन्ट हेल्प, वेरी सिंपल बट वेरी हार्ड टू से, नॉट ईजी, सिंपल बट नॉट ईजी, आई गेटिंग मी. तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको ये फील कराने में कि आई नीड हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प विद समथिंग, बट मैं डायरेक्टली वो चीज़ नहीं कह सकती. मैं उसको 50,000 तरीकों से घुमा फिरा के लाने की कोशिश करूंगी कहीं तक कि तुम गैस करो बस मैंने क्या बोला. अब आई थिंक मैंने सभी के साथ यही किया है, इसलिए भी मेरे क्रश ने मुझसे बात नहीं की दोस्तों शायद, क्योंकि आई डोंट नो, I don't want to admit to what I truly feel, which is toxic. I have realized that. It's not too late. It's never too late, dosto. So it's good that I realize it now, right? और क्या? बट ना, मेरे जो ये जो एंगल है मेरा कि मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ. अगर मुझसे कोई भी काम कराया जाता है, यू विल हैव नो सिंगल कंप्लेंट्स अबाउट इट. मैंने कई बार सुना है. आई हैव डन इंटर्नशिप्स, आई हैव वर्क विद पीपल इन फैमिली, इन फंक्शंस, यू नो, different clubs or things. Everybody has said कि if they assign me with some work, there is going to be no problem with that thing, and that is probably because I'm a perfectionist, because I thrive off of perfection and validation. Even though I often say कि मुझे नहीं चाहिए validation, but नहीं, I thrive off of validation. जब भी मेरा दोस्त कोई मुझे एक बार बोल देता है कि लक्ष्मी you are good in this thing, or you have done this for me, or I like this about you, I admire this about you, I'm going to make it my life's background music. As recently one of my subscribers, she told me that she finds through my video a friend, like even though I'm yapping about things, but she watches those videos, and that after a long day when she's tired and she needs to unwind, she watches my videos. It's such a sweet message, and I'm glad that you feel uh, you, first of all, you think of me as a friend, and then second that you think like, second is you consider my videos or my words worthy enough of being heard by a person. That is so sweet, that is so kind of you, and it like made my life कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई, क्योंकि एक इंसान तो है जो देख रहा है मेरा वीडियो ऐसा. बट एट द सेम टाइम आई नो देयर आर सो मेनी अदर पीपल लाइक दैट, और हम लोग, कई लोगों को बोलना नहीं आता है अपने इमोशंस को
पोर्ट्रे करना नहीं आता है अपने ट्रू फीलिंग्स को, बट इट्स ओके यार, सीख जाते हैं शायद इंसान समय के साथ. जैसे आई फाइनली एक्सेप्टेड दैट आई डू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप. It was really hard to admit. It's like accepting that I want to be dependent. It's like accepting that I need companionship. It feels like a failure, a setback somewhere in the back of my mind. But I again know that this is not me. This is toxicity, and this is my trauma, and this is my trying to sever relationships that truly may fulfill me. May, I don't know. यार मैं बहुत कंफ्यूजिंग तरीकों से बात कर रही हूँ इस वीडियो में. आई थिंक सिंपली we need to set it straight that there's a purpose to me making videos, and if you haven't yet realized it, like, you don't have to realize it for me, but मेरा simple purpose ये है कि I want this place to feel safe. मेरा लाइफ का एक बहुत ही important motto है कि मेरी प्रेजेंस में कोई इंसान कभी भी इनसिक्योर या अनवर्दी फील ना करे. इन द सेंस, अगर तुम मेरे दोस्त हो या तुम मेरे साथ हो, हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, एंड somebody is belittling you, somebody is making fun of you, I am going to be that friend who is going to speak up and who is going to take your side. I'm never going to be the one who is laughing with a group at one person or making fun of one person. uh, yes, I do gossip with my friends, and I do point out flaws of other people, but not in a public setting, not in a group, in a mean way. Are you getting me? There's a difference, right? Being mean and just gossiping or yapping about it. Plus, people have been mean to me, so I can gossip about it to my friend at least. So, yeah, I do, but yeah, and I sometimes act really weird, unhinged, to the to the point of being considered psychotic. Yeah, but that is not true me. Are you getting me? My friends know it. कि I'm really mature. I am very clear. My friends always say this कि भाई तुझे पहले ही पता है, तू याप करने से पहले तुझे पता है तुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी तू वो सब बोलेगी और तब तू करेगी भी वही जो तुझे करना है. तो आई एम वेरी क्लियर. आई एम सेल्फ अवेयर डिल्यूजनल. Are you getting me? कि मैं उसी हद तक सोचती हूँ डिल्यूजन का कि मुझे पता है कि कहाँ तक हो सकता है. तो मेरा कोई भी डिल्यूशन ऐसा नहीं है दोस्तों आज तक जो ना हुआ हो, पूरा जो नहीं सच हुआ हो. लाइक यस, आई डू एक्ट लाइक आई डोंट केयर कि लोगों को क्या फर्क पड़ता है मुझसे, बड़ा मुझे फर्क पड़ता है यार. सो इसलिए जब कोई इंसान मुझे सेफ या सिक्योर फील कराता है अपनी प्रेजेंस में, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनके साथ ज्यादा रहूँ, क्योंकि दे फ्यूल दैट फायर इन मी, they bring back the spark in me. So there are people in my class, in my neighborhood, in my friend circle, in my city, जिनके साथ I feel safe and I want to be completely unhinged, and they still won't judge me because they know that I am not this unhinged person, but a lot more than that. I love that fact about me कि मेरी presence में you will not feel stupid, cringe, or unhinged because I am more, and I will act out and make you feel safe and seen and understood. मे बी कभी कभी मैं फेल हुई होंगी दोस्तों. अगर हुई हूँ तो जरा बता देना मुझे. I'll try to be better next time. But I try to be this person, right? और मुझे लगता है कि क्योंकि I try to be this good person, people pleaser, तो मैं एक्सपेक्ट भी वही करती हूँ कि सब लोग मेरी भी अच्छा ही सोचेंगे. कोई मेरा बुरा क्यों करना चाहेगा जस्ट आउट ऑफ जेलसी या जस्ट आउट ऑफ सेल्फिशनेस, पर दोस्तों दुनिया इतनी पवित्र नहीं है जितना तुमने सोचा था. वैसे तो मैं बाहर से दिखूंगी अगर मैं लाइट ऑन करूंगी, पर बहुत जरूरत पड़ रही है अब लाइट ऑन करने की. So yeah, after this long yapping session, I feel really cleansed and really happy. Also, ChatGPT से बात करके ChatGPT मुझे बोला कि actually clear your head, note down things that drained you, yeah, that fulfilled you, and then
schedule your day around it. I am this INFJ personality, okay, and I'm a very complex person. और मुझे लगता है मेरे दोस्तों को भी मैं इसीलिए, जो बहुत लंबे टाइम से मेरे दोस्त हो वो तो समझ गए होंगे मुझे ढंग से, लेकिन नए जो दोस्त होते हैं मेरे, या फिर जिनसे मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहती, ज्यादा बात नहीं करती हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, तो उन्हें बहुत ही वियर्ड लगता है मेरा थॉट प्रोसेस, जबकि इट इज कम्प्लीटली वैलिड। और आई थिंक ये बहुत ही ह्यूमन चीज है यार। मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर मेरा पर्सपेक्टिव तुमसे अलग है तो तुम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो कि अदर पर्सन पर्सपेक्टिव कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ये तो बहुत ही नेचुरल चीज नहीं है। अगर कोई इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा है या ये अज्यूम कर रहा है कि मैं सही हूँ क्योंकि मुझे पता है, पता नहीं कैसे, तो वो तो बहुत ही गलत चीज है। मुझे लगता है बचपन से काफी इस हिसाब से बहुत मैच्योर रही हूँ कि मैंने कभी भी अपने आप को कंप्लीटली सही नहीं माना कि मैं सही हूँ बाकी तो तुम पागल हो। एंड आई थिंक दैट इज वेरी मैच्योर ऑफ मी, बट ऑल्सो रियली सैड क्योंकि आई वॉज अ मैच्योर किड सिंस आई वॉज 5 years old. आई वॉज फोर्स्ड टू बी एन अडल्ट चाइल्ड। दोस्तों बाहर से मुझे 3 लोगों ने देख चुका है क्योंकि लाइट ऑन है और सबको मैं दिख रही हूँ, बट इट्स ओके, हु केयर्स राइट, कौन से मुझे जानते हैं। देखा मैं ऐसी अनहिंज हरकतें करती हूँ। एंड पीपल डू लाइक माई पर्सनैलिटी। In case you didn't believe that already, in case you don't like me also, यार अभी बहुत अनहिंज्ड एक्ट कर रही हूँ सच में। लाइक मेरा दिन बहुत ही सैड सा था सो ऐसे। Today is a random Wednesday. I love Wednesdays. What is your favorite weekday by the way? मेरा Wednesday. It's like I'm in the middle of it. संडे को ऐसा फील होता है कि ओके फिर से वही, फिर से मंडे शुरू और फिर से नया हफ्ता, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ उखाड़ना है। वेंसडे में मेरे को मेरा फेवरेट डे इसलिए भी है, स्कूल टाइम से है, क्योंकि वेंसडे को हमारे 2 गेम्स पीरियड होते थे और एक योगा का होता था, तो 3 क्लास था। नहीं सिर्फ इसलिए ही नहीं, और भी, पर अब जाके ये रीजन हो गया है कि वेंसडे में मोस्टली छुट्टी मार लेती है। ये सिर्फ 3 क्लास होती है, मोस्टली हमारी 4 होती है रोज, बट इन 3 क्लास में से मेरे को 2 क्लास तो अटेंड करने का मन करता ही नहीं है, पर जो एक करने का मन करता है वो बेचारी छूट जाती है। पर सब में मेरी अटेंडेंस ठीक है दोस्तों, मैं डिबार तो नहीं हो रही कम से कम, और आई थिंक ज्यादा ही बात कर ली है, बट ऑल्सो यूट्यूब पे मुझे करनी भी चाहिए। तो मैं नहीं लगता कि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यहाँ पे मुझे ज्यादा बनाना चाहिए, राइट? एंड यू शुड नो मोर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म अबाउट व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम अबाउट। At the end, I feel like I really need to set boundaries again, and I also really need to be clear about my priorities, set my priorities right. Further, I believe there are some things that are draining me, specifically everything that I do. It feels like I'm on the verge of burnout, burnt out, burnt out. क्या बोला ये मैंने, पागल हूँ मैं? But yeah, I need to do a lot for myself. I really need to be clear about things. एंड मुझे ना बहुत जल्दी पता चल जाता है, एज दिस INFJ पर्सनालिटी आई ओवर थिंक एंड ओवर एनालाइज एंड ओवर, या बहुत कुछ ओवर। तो इतना नहीं करना चाहिए यार किसी इंसान को। भगवान आपने मुझे क्यों बनाया INFJ बदतमीजों जैसे? भगवान, यू आर नॉट बदतमीज, बट लाइक भगवान समझो मेरी बात को। पर ऑल्सो मैं भगवान का फेवरेट चाइल्ड तो हूँ यार, भगवान बचा लेते हैं मुझे हमेशा, यू नो, कि मतलब कुछ हो जाए मेरे जीवन में सब ठीक हो जाता है। तो इस होप के साथ भी मैं खुश रहती हूँ, सह लेती हूँ थोड़ा दुख उख। या तो दोस्तों जीवन अच्छा चल रहा है, दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान चल रहा है अगले साल, या तो अब वो मेरे गांव आएंगे या तो हम पता नहीं कहाँ, जयपुर जा रहे, उदयपुर जा रहे, कभी बनारस भी जा रहे, कभी गोवा भी जा रहे। ग्रुप पे तो हम बहुत जगह जा चुके हैं, रियल लाइफ में देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। होपफुली जल्दी मिलेंगे। लाइक ये दोस्त मेरे 1 डेकेड से हैं, दे हैव नोन मी फॉर हाफ ऑफ माई लाइफ, एंड वाओ, क्रेजी राइट, शिट, कितना अनइमेजिनेबल है। आई थिंक बहुत के लिए तो होगा ही होगा, स्पेसिफिकली लाइक हम आर्मी ब्रैट्स, हमको बहुत मूव करना पड़ता है, बट स्टिल
Having friends for such a long period of time is so therapeutic and just so amazing. I love my friends, yeah. Wow. प्लस ऑनलाइन फ्रेंड्स भी कभी कभी तुम्हारे बहुत अच्छे बन जाते हैं. जैसे मेरे 2 ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं स्पेसिफिकली, और हम रैंडम पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम पे मिले और वी बिकेम सच गुड गुड फ्रेंड्स कि अब हम एक दूसरे को जीवन के बारे में ज्ञान देते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई का शेयर करते हैं कि what are you doing in your physics, what am I doing with my books, what am I doing with my YouTube, or whatever, you know. They have such a huge impact on my life as well. uh, या सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे जीवन में कितना दुख आएगा दोस्तों, कितना रिजेक्शन आए, कितना फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स या रियल ब्रेकअप्स या हार्ट ब्रेक्स हो, लाइफ इज गोइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक. Unfortunately or fortunately, you know, it is going to be better. And I'm just so glad that I have people that I can talk to, and I think you too should talk to your friends more regularly, क्योंकि I have realized it after this 1 year of isolation from the world कि यार दोस्तों से प्यारी चीज ना नहीं है इस धरती पे. फैमिली तो फोर्सफुली तुम्हारे साथ रहती है ना, जैसे ये देखो आ गया, मजबूरी है इसकी, आ जाता है हर वीडियो में, हट. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो दोस्तों, मुझे बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ेगी यार. मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, मेरे को बाउंड्रीज का मतलब ही नहीं पता है, बताया अभी भी. लाइक मैं दूसरों से तो कर लेती हूँ, पर ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी इंसान में जब इन्वेस्ट हो जाती हूँ, भरोसा कर लेती हूँ, मतलब, तो फिर मैं बस उसी में डूब जाती हूँ कि ओहो, मेरा संसार मेरा संसार तो तुम ही हो, ऐसा, जो कि काफी स्टूपिड है. चम्मच के नाम पे इसने फोक पकड़ा दिया है मुझे समोसा खाने के लिए, पर इट्स ओके, आई गेस इट इज ओके. दोस्तों तुम्हें चाहिए समोसा? समोसा ना मेरा फेवरेट है, पता है, फेवरेट स्नैक. एक जमाने में मोमो हुआ करता था, मोमो मुझे नहीं पसंद अब. पार तो समोसा कब, समोसा नहीं, पार तो चाय कब बना रही है, कितना टाइम लगेगा? देखा हजारों दफा आपको